ہر شہر ہر خبر میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے رخ کریں گے پنجاب کا۔ ملک بھر میں سونے کی بڑھتی قیمتوں کے باعث سیالکوٹ میں خریدار اور دکاندار دونوں ہی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ABN نیوز ظفر وسیم سے۔ جی، سونے کی قیمتوں میں اضافے کے باعث نہ صرف کہ عوام بلکہ صراف بھی پریشان نظر آ رہے ہیں کہ وہ سونا جو شادی بیاہ کی تقریبات و دیگر تقریبات میں جو ہے وہ تحائف کے لیے استعمال ہوتا تھا، آج اس کا عوام کے لیے خریدنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو چکا ہے، جبکہ کاروباری مندے کے باعث صراف بھی شدید مشکلات کا شکار ہے، جس کے کہ قومی معیشت پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اور پرائز بڑھنے کی وجہ سے کسٹمر جو ہے اس ٹائم بڑا ڈسٹرب ہے، کیونکہ ریٹ بہت ہائی ہے اور ان کے بس میں نہیں رہا۔ عام جو لوگ ہیں ان کے یہ ریٹ ان کے بس میں نہیں رہا اور پرچیز نہیں کر سکتا گولڈ۔ یہ بیسک پرابلم ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے مندی کا رجحان ہے یہ کاروبار۔ سونے کی قیمتوں میں اضافے کی بنیادی وجہ عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ، روپے کی قدر میں کمی اور ٹیکسز کی بھرمار ہے، جس کے باعث کہ آج سونا خریدنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو چکا ہے۔ تاہم اس پر قابو پا کر جو ہے وہ حکومت جو ہے نہ صرف قومی معیشت کو بحال کر سکتی ہے بلکہ کہ عوام کے لیے مشکلات بھی دور کر سکتی ہے۔ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ 10 ਤੋਲੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ 1 ਤੋਲਾ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਕਿਸੇ। ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਣ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ہم ضرورت اس امر کی ہے کہ سونے کی قیمتوں میں کمی کے لیے ٹھوس اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ جی، منڈی بہاؤدین حکومت پاکستان نے یوٹیلیٹی سٹورز پر خورنوش کی سبسڈی شدہ اشیاء پر سبسڈی ختم کر دی، جس کے نتیجہ میں متوسط دہاڑی دار اور سفید پوش طبقہ یوٹیلیٹی سٹور سے خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہے۔ شہریوں نے حکومت پاکستان سے دوبارہ سبسڈی شدہ اشیاء بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں افضال حسین سے۔ جی شکریہ۔ اگر بات کریں اس وقت مہنگائی بے روزگاری کے حوالے سے، تو اس وقت متوسط دیہڑی دار، سفید پوش، تنخواہ دار طبقہ شدید پریشانی کے عالم میں، کیونکہ اس وقت جو یوٹیلیٹی سٹور ہے ان پر ریلیف بند کر دیا گیا۔ جو حکومت پاکستان کی طرف سے سبسڈائی چیزیں آتی تھی وہ اس وقت نہیں مل رہی، جس میں آٹا ہے، گھی ہے، چینی ہے یا دالیں ہیں، وہ سیم مارکیٹ کے ریٹ پر اویلیبل ہے، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور ہے۔ اور اس وقت یوٹیلیٹی سٹور بالکل ویران پڑے ہوئے ہیں۔ جب ہماری بات ہوئی یہاں کے جو مینیجر ہیں ان سے، تو ان کا کہہ رہا تھا کہ اس وقت سبسڈائی چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے شہری خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو حکومت پاکستان انہوں نے یوٹیلیٹی سٹور بند کرنے شروع کر دیا۔ اس وقت منڈی بہاؤدین کے اندر یونین کونسل لیول پہ 67 میں سے 35 جو یوٹیلیٹی سٹور ہے وہ بند کر دیے، جس کی وجہ سے شہری شدید پریشانی کے عالم میں۔ جب ہماری بات ہوئی شہریوں سے، تو ان کا کہہ رہا تھا کہ حکومت پاکستان یہ مینڈل لے کر آئی تھی کہ عوام کو آٹا، گھی، چنے، دالیں وغیرہ سستے داموں پر دیں گے، لیکن اس وقت وہ سبسڈائی چیزیں بند کر دی گئی، جس وقت وجہ سے ہم شدید پریشانی کے عالم میں۔ تو ہمارا پرزور مطالبہ حکومت پاکستان سے اور حکومت پنجاب سے کہ وہ چیزیں دوبارہ سبسڈائز کریں، تاکہ غریب متوسط دیہڑی دار سفید پوش طبقہ ہے وہ بھی 2 وقت کی روٹی کا حصول ان کے لیے ممکن ہو سکے۔ جی، جہلم شہر بھر میں تجاوزات مافیا نے شہریوں کا جینا محال کر رکھا ہے۔ جہلم کے مختلف مقامات کی مین شاہراہوں، جن میں شاندار چوک، مین بازار، کناری بازار، اہل حدیث چوک اور گنبد والی مسجد کے ساتھ ساتھ مین شاہراہوں پر رکشہ سٹینڈ قائم ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کا گزرنا محال ہو چکا ہے۔ مزید جانتے ہیں جہلم سے نمائندہ ABN نیوز عبدالرحمان قادری سے۔ ہاں جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ جہلم شہر میں تجاوزات کی بھرمار ہے۔ شہر کے بازاروں میں دکانداروں کے باہر ریڑیاں ٹھیلے اور لگائے آمد و رفت کے لیے مشکلات کا باعث بن رہے ہیں۔ شہر کی مرکزی بازار، گنبد والی مسجد، اہل حدیث چوک میں بازار میں جگہ جگہ تجاوزات کی وجہ سے بازار سکڑ کر تنگ گلیوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس حوالہ سے ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ جی ہاں جی، بالکل ایسے ہی ہم بازار آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پر گاڑیاں، موٹر سائیکل، رکشے وغیرہ بہت رش ہے، یہاں پر چلنے نہیں ہو رہا۔ مہربانی فرما کر اس کو جو ہے کنٹرول کیا جائے۔ بالکل جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی ہے کہ شہری کا کہنا ہے کہ جگہ جگہ پر رش ہے، جگہ جگہ پر جو ہے مین شاہراہوں پر گاڑیاں پارکنگ کی شکل میں کھڑی ہیں۔ انہوں نے جہلم کی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ تجاوزات مافیا کو کنٹرول کیا جائے اور ان کو واگزار کروا کے عوام کی جان چھڑوائی جائے۔ جی، تلہ گنگ شہر اور گردنوا میں سوئی گیس کی غیر اعلانیہ بندش کی وجہ سے عوام مشکلات کا شکار ہیں۔ گیس نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ و طالبات کو بھی مسائل کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں اکرم نور سے۔
जी बिल्कुल, तलांगंग शहर और गिरदो नवाब में सुई गैस गैर एलानिया और जुल्माना बंदिश की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर इस हवाले से बात की जाए तो अहले खाना समेत तलबा और तलबात और जो नौकरी पेशा अफराद है वो भी सुबह बगैर नाश्ते के जो है वो अपने कामों और स्कूल वगैरह जाने पर मजबूर होते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। सारा दिन सारी रात कोई गैस नहीं, बच्चे जो हैं वो भी भूखे स्कूल जा रहे हैं, जो मुलाजम है वो भी बेचारे भूखे सुबह चले जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है गैस का। गैस ना होने की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। पूरे ज़िला तलांगंग में गैस नहीं है, जिसकी वजह से तालिबे इल्म बगैर नाश्ते के स्कूल जा रहे हैं। ऑफिस वर्कर जो हैं वो भी नाश्ते के बगैर जा रहे हैं, और जो गैस का शेड्यूल दिया हुआ है उसके मुताबिक बिल्कुल गैस दे ही नहीं रहे। तकरीबन आधा घंटा गैस आती है, उसके बाद सारा दिन गायब हो जाती है। जी, जैसा कि आपने जाना कि अगर आला हुकाम नोटिस लेकर महकमा सुई गैस को इस बात पर पाबंद करें, जो शेड्यूल जारी किया गया है उस पर अमल दरामद कराया जाए तो यकीनन शहरियों की मुश्किलात में कमी लाई जा सकती है। जी। और कसूर में गन्ने की फसल पककर तैयार हो गई। शुगर मिल से तंग आकर किसानों ने गुड़ तैयार करना शुरू कर दिया है। गुड़ की तैयारी आज भी रवायती और कदीम तरीके से की जाती है। मज़ीद जानते हैं मियां काशिफ से। जी शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूं कि कसूर में इस वक्त गन्ने की फसल पककर तैयार हो चुकी है, और गन्ने की फसल पकने के बाद जो है इसका गुड़ बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तो बात की जाए तो ज़िला भर में जो है देहातों में जो है वो गन्ने की तैयारी के बाद जो है वो गुड़ बनाने का सिलसिला जारी है। तो मैं भी इस वक्त एक गुड़ बनाने वाली भट्टी पर ही मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ ज़िम्मेदार भी मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं कि किन मराहिल से गुजर कर गन्ना जो है वो गुड़ की शक्ल इख्तियार करता है। यहाँ पर किसान से बात करते हैं। क्या कहेंगे, आप गुड़ बना रहे हैं? जी, सबसे पहले इसको गन्ना बार से यानी कि खेतों से खरीदा जाता है, उसके बाद यहाँ लाकर हम रस निकालते, रस निकालने के बाद रस कढ़ी ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੜਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆਈਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁੜ खुशक होने तो बाद यानी कि फिर असी अगे जी बाहर बेचने के लिए बेचते हैं। यहाँ पर जी आपने किसान की बात सुनी, इनका यही कहना है कि सबसे पहले गन्ने को जो है वो काटा जाता है, उसके बाद लाकर जो बेलने में उसका रस निकाला जाता है, और उसके बाद कढ़ाई में डालकर जो है उसको पकाया जाता है, और उसके बाद जो है वो गुड़ तैयार होता है, और उसकी पिनियाँ बनाकर जो है वो बाहर दुकानों पर और टेलों पर जो है वो रखकर बेचते हैं। तो इस हवाले से बात की जाए तो सर्दियों में जो है वो गुड़ की मांग भी बढ़ जाती है, क्योंकि सर्दी के मौसम में लोग जो है वो गुड़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इस वक्त कसूर में जो है वो गुड़ बनाने का जो सिलसिला है वो जारी है। मौसम सरमा की आमद के साथ ही घखड़ मंडी में सुई गैस की लोड शेडिंग में इजाफा। बच्चे बगैर नाश्ता के स्कूल जाने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं शाह हुसैन से। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे सुई गैस पॉइंट नज़र आ रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसे ही पॉइंट हर गली में, हर महल्ले में लगा दिए हैं, जिससे लोड शेडिंग का टाइम शुरू होते ही जिनसे सुई गैस का जो है वो गला घूंट दिया जाता है। ये जो पाकिस्तान में एक सस्ती सहूलत आवाम को दी गई थी, ये आहिस्ता आहिस्ता इसको भी ख़त्म किया जा रहा है, और अवामी मुतालबा सामने आ रहा है कि लोड शेडिंग, सुई गैस की जो लोड शेडिंग है इसको ख़त्म किया जाए। और हमारे जो बच्चे हैं वो अक्सर औकात सुबह जब स्कूल जाते हैं वो भूखे चले जाते हैं, और गैस की जो लोड शेडिंग है वो सर्दी अभी इतनी ज़ोर शोर से नहीं आई, और इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। अवामी मुतालबा है कि हम सुई गैस की जो लोड शेडिंग है इसको ख़त्म किया जाए, और अवाम को इस सस्ती सहूलत से मुस्तफ़ीद होने दिया जाए। जी। पाकपतन ज़िला इंतज़ामिया की गफलत लापरवाही से 2 साल में मुकम्मल होने वाला जिम्नेजियम हाल 16 साल गुजरने के बाद भी तामीर ना हो सका। शहरियों की वज़ीर आला से नोटिस लेने की अपील। मज़ीद जानते हैं हसन अब्बास बुखारी से। जी बिल्कुल, ये जिम्नेजियम हाल वो है जिसकी तमीर को 15 साल का अरसा गुजर चुका है, और ये तमीर मुकम्मल नहीं हुई। ये 2009 में मंसूबा शुरू हुआ था, जो 24 माह की कतील मुद्दत में मुकम्मल होना था, जिससे नौजवान अपने खेलों की एक्टिविटीज़ जारी नहीं रख सकते। और इसमें जो है
पाकपतन का शहरियों का कहना है कि पाकपतन के सियासतदान और ज़िले इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही से ये मंसूबा 15 साल गुजर जाने के बावजूद भी अभी मुकम्मल नहीं हुआ। ये इसका तखमीना तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख रुपए था। अब ये 15 साल गुजर जाने के बाद 15 करोड़ से भी जायद का तखमीना हो चुका है और ठेकेदार काम छोड़कर फरार हो चुका है। और पाकपतन के शहरियों और खिलाड़ियों का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब इस पे नोटिस लें और जिम्नेजियम हाल की तमीर को फौरी शुरू किया जाए। जी। कोट अद्दू इंतजामिया ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का साफ सुथरा पंजाब विजन को हवा में उड़ा दिया। गंदा पानी खड़ा होने से सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा। मज़ीद जानते हैं फ़हीम अंसारी से। शहर के एन वस्त कदीमी मदरसा मज़ाहिर वाली गली में जहाँ पर गंदा पानी खड़ा होने की वजह से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। यहाँ का गंदा पानी जो है तालाब का मंजर पेश करने लग रहा है। मैं इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ, यहाँ मदरसा मज़ाहिर में जो दीनी तालीम हासिल करने के लिए बच्चे आती हैं उनके लिए मसाइल हैं, जो दुकानदार हैं, जो यहाँ से गुजरने वाले हैं, सबके लिए मुश्किलात का सामना है। इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक इसको साफ़ करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। ये तकरीबन कई रोज़ से यहाँ पर पानी खड़ा है। इस वक्त हमारे साथ शहरी सरापा एहतजाज है, इनसे हम जानते हैं। ये तो डेली का मामूल है जी, डेली पानी खड़ा रहता है। जब जाते हैं उधर कहते हैं, वो कहते हैं कि अभी पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, हमारे पास मसाइल हैं, पानी निकलता नहीं है। मदरसे की बच्चे हैं इधर से जाते हैं, नमाजी परेशान हो जाते हैं। अच्छा, जैसे कि हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद थे, दुकानदार हजरात हमारे साथ मौजूद थे, उनका यही कहना था कि यहाँ पर हमने कई बार इंतज़ामिया को हिदायत की है कि और उनको कॉल्स किए हैं, उनके साथ राब्ते में रहे हैं, लेकिन इसके हवाले से किसी भी किस्म की जो है कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। जी। लोधरा का म्यूनसिपल स्टेडियम उजड़ गया। गेट पर गंदगी के अंबार। स्टेडियम के अंदर सफाई का फुकदान है। स्टेडियम के गेट पर गंदगी की वजह से बदबू, खिलाड़ी बीमार हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी फौरी तवज्जो दें। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा इमरान अली अवान से। जी, लोधरा का जो म्यूनसिपल स्टेडियम है इसकी हालत बहुत ख़राब है। अगर हम म्यूनसिपल स्टेडियम में दाखिल हों तो वहाँ स्टार्ट पे गंदगी के अंबार हैं और म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। और इसी तरह स्टेडियम के अंदर जो बाथरूम थे वो भी टूट फूट का शिकार हैं और यहाँ गंदगी ही गंदगी है। तो लोधरा के मारूफ कौमी खिलाड़ी जो इसी स्टेडियम में खेलते रहे, मिर्ज़ा सलीम अख्तर साहब मेरे साथ हैं, इनसे पूछते हैं ये हमें क्या बताते हैं। ये स्टेडियम 80 की दहाई में बना, 8 एकड़ पर मुहित ये स्टेडियम, जो आप इसकी हालत ज़ार देख रहे हैं कि इंतहाई ज़बू हाली का शिकार है। और यहाँ पर बाहर अगर निकलें तो गेट के करीब ताफुन फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बजाय सेहतमंद होने के बच्चे बीमार और लाकर कमज़ोर होकर जा रहे हैं, क्योंकि इस बड़ा बड़ा घास और लेवल ना होना और स्टेडियम की हालत ज़ार के हवाले से जो दीवारें जो टूट फूट का शिकार हैं, गेट खुले हैं और यहाँ पर लोगों ने शारे आज़म बनाई हुई है। और अगर गेट के बाहर अगर देखें तो गला मंडी बनी हुई है, रक्शे के स्टैंड बने हुए हैं। और ये हालत ज़ार देख कर इंतहाई हमें अफसोस होता है कि जो नशा करने वाले जो लोग हैं उनकी आमाजिका बन चुकी है। जी, कौमी खिलाड़ी मिर्ज़ा सलीम अख्तर बता रहे थे कि जो स्टेडियम की हालत ज़ार है इस पर ज़िले इंतज़ामिया फौरी एक्शन ले और जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं म्यूनसिपल कमेटी के, वो इस स्टेडियम की हालत को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करें। ज़िला टोबा टेक्सिंग को मार्ज वजूद में आए 4 दहाइयाँ गुजर गई, मगर आज भी मुत्तदिद कौमी और सूबाई महकमा जात अपने ज़ाती सरकारी दफातर से महरूम कराए कि इमारतों में खाना बदोशों की तरह सरकारी उमूर चला रहे हैं। मोहम्मद आसिफ नदीम की रिपोर्ट देखते हैं। जिला टोबा टेक्सिंग को मारज वजूद में आए 4 दहाइयाँ गुजर गईं, मगर आज भी मुतअद्दिद कौमी और सूबाई महकमों के अपने सरकारी दफातर की तामीर न हो सकी। टोबा टेक्सिंग के 50% महकमा जात के सरकारी दफातर किराए के इमारतों में खाना बदोशों की तरह सरकारी अमूर चला रहे हैं, जिनमें महकमा तल्लुकात आमा पंजाब, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात, ज़िले इलेक्शन कमीशन, महकमा बहबूद आबादी, सुई नादरन गैस, फेडरल सीट सर्टिफिकेशन, महकमा माही परवरी, ज़रूरी मार्केटिंग, इस्लाह आपाशी, ओल्ड एज बेनिफिट्स, हाउसिंग एंड फिजिकल प्लानिंग, सोशल सिक्योरिटी, कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशन, उशर व ज़कात, पाकिस्तान बैतुल माल, वज़ारत दाखिला के नादरा और पासपोर्ट दफातर समेत कई दीगर महकमे भी काबिल जिक्र हैं। बाज़ महकमों के दफातर के माहाना किराए 50,000 रुपए से भी जायद हैं और 42 साल से जायद अरसा के किरायों का हिसाब जमा किया जाए तो मज़कूरा रकम के बड़े हुजम से कई सरकारी कम्प्लेक्स तमीर हो सकते थे, जबकि इनमें से कई महकमों की अपनी जाती जगह भी मौजूद हैं। ये एक बड़ी हैरानकुन बात है कि इतने साल गुजर गए हैं, टोबा टेक्सिंग में बहुत सारे महकमे हैं जिनकी सरकारी इमारतें नहीं हैं। वो रहायशी जो कॉलोनियाँ हैं उनमें कोई घर रेंट के
लिए हुए हैं, वहाँ दफ्तर है और हर 2-3 साल बाद या 1-2 साल बाद भी वो दफ्तर वहाँ से शिफ्ट हो जाता है। साहिल जब वहाँ जाता है तो पता चलता है कि वो दफ्तर तो कहीं और चला गया है। मुझे भी एक इत्तेफाक हुआ, 2-3 साल बाद एक काम पड़ा तो इस सिलसिले में मैं महकमा माहौलियात के दफ्तर में गया तो वो पता चला यहाँ से शिफ्ट हो गया। फिर मैं पूछ पाछ के वो बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचा हूँ। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सरकारी जो दफातर हैं उनके लिए सरकारी इमारतें तामीर करवाए, वहाँ शिफ्ट हों। इससे सरकारी खजाने से बोझ कम होने के साथ आए रोज किराए की इमारतों में कायम दफातर की खाना बदोशों की तरह मुंतकली व तब्दीली से शहरी साइलिन को लाहक परेशानियों का भी अजाला हो सकेगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ नदीम, ABN न्यूज़, टोबा टेक सिंह। अहमदपुर सियाल में सर्दियों का मौसम शुरू होते ही साग हर दस्तरखान की जीनत बन जाता है। बहुत पसंद करते हैं और शौक से खाते हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद इरफान हरपल से। जी बिल्कुल, मौसम सरमा और सर्दियों के आगाज होते ही जो साग है उसको जो लोग हैं बहुत शौक से खाते हैं और इसकी जो फसल है वो भी शुरू हो जाती है। और साग सिर्फ पंजाब में नहीं, पंजाब के जो बहर के दीगर मुमालिक हैं उनमें भी बड़े शौक से खाया जाता है। मजीद हमारे साथ यहाँ पे एक यहाँ के रिहायशी भी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं कि साग के फवाइद क्या है। ਤੇ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਠਾ ਪੱਕੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਮੱਖਣ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਹਾਤੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕ ਕੇ ਤੇ ਥੇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਮਕਈ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 'ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਲ ਵੀ ज्यादातर साग ਨੂੰ सुबह टाइम पसंद किया जाता है। जी जैसे कि गुफ्तगू सुनी आपने इस शहरी की, इनका यही कहना है कि साग के बहुत फवाइद भी हैं और साथ में जब सुबह टाइम मकई की रोटी होती है और ऊपर साग होता है और साग को तड़का लगा हुआ होता है तो उसमें इसका जो खाने का मजा है वो भी दुबाला हो जाता है। हमारे जो पंजाब है, पंजाब के अलावा भी जो दीगर मुमालिक हैं उनमें भी साग को बहुत शौक से खाया जाता है। शाहजमाल खानगढ़ चौक का कदीमी कब्रिस्तान गंदगी का ढेर बन चुका है, जिसकी वजह से कब्रों का तकद्दुस पामाल हो रहा है। शहरियों का कहना था कि कई कब्रें मस्मार हो चुकी और बास अफराद ने बिजली की नंगी तारें ज़मीन पर बिछा दी हैं, जिससे फातखानी करने वालों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का मुतालबा है कि कब्रिस्तान की सफाई के लिए हैवी मशीनरी लगाई जाए और 4 दीवारी की दोबारा मुरम्मत की जाए। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से दरख्वास्त की है कि कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दाम किया जाएँ। मुरीदके में सर्दियों का मखसूस फल संगाड़ा इंसानी सेहत के लिए बेशुमार फ़वाइद का हामिल है। मुख्तलिफ इंसानी अज्जा को तक़वियत बख्शने वाले फल संगाड़े पर देखते हैं कैसर जमील मिर्ज़ा की ये रिपोर्ट। गलियों, बाजारों और चौकों में नजर आने वाला स्याह रंग में हीरे की शक्ल का फल संगाड़ा बेपनाह फ़वाइद का हामिल है। ये एक बेलदार फल है जिसका पौधा तालाबी पौधा भी कहलाता है। झीलों, तालाबों और खड़े पानी के जोड़ों में तैरता हुआ नजर आने वाला ये पौधा अक्टूबर से दिसंबर तक फल देता है। सर्दियों की आमद के साथ ही संगाड़े की मांग में इजाफा हो जाता है। पानी के अंदर पौधों की जड़ों के साथ उगने वाले इस फल को पौधे से अलग करके बोरियों में भरकर मार्केट तक पहुंचाया जाता है। आमतौर पर इस फल को मखसूस तरीके से उबाल कर खाया जाता है, लेकिन इसकी अफादियत बढ़ाने के लिए आटे की सूरत में भी इस्तेमाल किया जाता है। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक ये फल हज़म के निज़ाम को ताकत देता है, जिगर की गर्मी को दूर करता, कमर को दर्द से निजात दिलाता है, ब्लड प्रेशर को काबू में रखने, जिल्द को नरम मुलायम करने, टीबी और खांसी के साथ साथ असाबी कमज़ोरी का खात्मा भी संगाड़े की खसूसियात में शामिल है। बेहतरीन तवानाई हासिल करने के लिए संगाड़े के आटे को दूध के साथ इस्तेमाल किया जाता है। घरों में बच्चे, जवान, बूढ़े और ख़वातीन ये फल मज़े के साथ खाते हैं। पानी के अंदर हीरे की शक्ल जैसा फल संगाड़ा दिल को ताकत बख्शने के साथ साथ निज़ाम को बेहतर बनाने का बाइस है। कैमरा टीम के साथ कैसर जमील मिर्ज़ा, ABN न्यूज़, मुरीद के।